Okay, class, welcome. Nobody else is going to join, I think. It's just us. I think 11 स्टूडेंट्स हैं लेकिन 5 आए हैं. बाकी 50% ऑफ द क्लास कहाँ हैं? खैर, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बातें समझाई थी क्रेडिट आवर्स से रिलेटेड, आज की हमारी जो 1.5 आवर की क्लास है दैट इज़ एक्चुअली द लैब सेशन. हम अलग से इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, विच मीन्स कि हम इसका सिलेबस और उसका सिलेबस अलग से नहीं लेके जाएंगे, बट ये है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लैब सेशन. सो इफ़ वी मूव टूवर्ड्स द फिज़िकल क्लासेस, तो जो आपका ये सेशन होगा दैट विल बी इन अ लैब, और उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे इफ़ दैट हैपन्स. अदरवाइज ऑन पेपर इट विल बी अ लैब सेशन, बट इसके अंदर भी हम वही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जो कि हम थ्योरी की क्लास में रखेंगे. और हम मिक्स करके कुछ चीज़ें चलेंगे, कभी हम लैब की चीज़ें यहाँ पढ़ रहे होंगे, कभी हम फिज़िकल जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो लैब में पढ़ रहे होंगे, बिकॉज द कोर्स इज़ द सेम, assignments will be the same, but the delivery will be a little changed. So okay, so where did we leave our last class? Did we start any topic? uh, could you please remind me, where did we leave our class yesterday? Did we leave anything इन बिटवीन? कोई टॉपिक हमारा बीच में रह गया था या हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था? जस्ट इंट्रोडक्शन. ओके. अच्छा, दानियाल अहमद, मुजीब शेख, सैयद ताहा, जुहैब अली, could you come with your reference numbers please? There is only one student with the reference number, that is Sayyid Ahmad Raza. Take a couple of minutes and just come with your reference number so that the CR may take the screenshot. Let's start after a minute or two. Come back. All right, so okay, so let's begin. Zohaib Ali Bhatti और मुजीब शेख अब भी बगैर उसके हैं रेफरेंस नंबर के. काइंडली कनेक्ट अगेन विद योर रेफरेंस नंबर. सो लेट्स स्टार्ट. सो द कोर्सेज ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, हमने कहा था फर्स्ट वीक के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करेंगे. व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग एंड हाउ डज it work? So the language that we will be studying will be C language, at least toward the first 50 to 70% of our course. आगे चल के वी में स्विच टू सी प्लस प्लस, अगर टाइम बचा और हमारे पास इतनी एनर्जी और इतनी चीज़ें हुई कि हम उसको अलग से टाइम दे सकें, सो वी विल डू दैट. अदरवाइज द लैंग्वेज विल बी सी. नहीं, लेकिन अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि लैंग्वेज होती क्या है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. सो व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोग्रामिंग? गिव मी योर डेफिनेशन सो दैट आई may नो कि आप किस लेवल पर हैं अभी. व्हाट इज़ योर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? What do you understand by programming when I say that programming?
What do you mean by that? Write me in the chat room, just like in a 4 or 5 sentences. Oh, sorry, 4 or 5 words or whatever. Anyone? Balki everyone. I want everyone's opinion on that. What is your understanding of programming? What do you mean by programming? What do you understand it means by programming? Okay, Sayyid Talha Ali has no idea, but that is still better than not telling me that you have no idea as well. So where are other students? Daniel Ahmed, what do you think? What does it mean by programming? What about you, Mujib? Programming the language of computer, Sayyid Ahmed Raza is saying. Daniel has no idea, okay. What about Sayyida Farida or Zohaib Ali? Mujib Sheikh is saying that to build a program by using coding and syntax. Okay, not sure. Alright, that's okay. Bad answers are better answers. Understand that. Because if you give the right answer, you have no chance of learning new things. If you give the wrong answer, you have a chance to learn that where were you wrong, why were you wrong. Okay, so bad answers are still better than no answer at all, and then even the correct answer. Just try to be interactive and try to write what do you think. अगर आप गलत जवाब नहीं देंगे, मुझे पता नहीं लगेगा कि आपके जहन में क्या गलत है. I will not be correcting that. So anyways, you made your effort. Some are saying that programming the language of computer to build a program by using coding. To build a program by using coding. Okay, that's very far fetched, but okay. सईदा फरीदा का जवाब आया है कि प्रोग्रामिंग मींस डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, यू आर डिजाइनिंग और डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो let's start with the basic thing. What does it mean by programming? Not just programming of the computers, जिसका जवाब आप लोगों ने मुझे दिया है. What does it mean by programming? So let's understand this thing. Some of you, many of you will be a right-handed people. आप खाना सीधे हाथ से खाते होंगे, या आप अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप बॉल थ्रो कर रहे हैं तो वो सीधे हाथ से आपको ज़्यादा बेहतर लगती होगी. आप कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तो इट विल बी बेटर कि आप सीधे हाथ से उठा के रख रहे हो. कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड उनको राइटिंग में लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो लेफ्ट हैंड से उनको राइट करना आसान लगता है, लेफ्ट हैंड से उनको फेंकना आसान लगता है, एंड थिंग्स लाइक दैट. So what does this mean? This means that if a person is right handed, कोई अगर right handed है, इसका मतलब ये हुआ that person is programmed to be a right handed person. उस person की programming के अंदर right handed चीज़ डाली गई है, और जो कि right handed नहीं है, left handed है, उसकी programming में left handed चीज़ डाली गई है. सेम इज़ द केस कि आप अगर आज आपको अगर कोई बंदा स्पेनिश में कोई चीज़ें बोलने लग जाता है या से सूडानी लैंग्वेज में बोलने लग जाता है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन. व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर प्रोग्रामिंग. उस चीज़ को समझना आपकी प्रोग्रामिंग में नहीं है. इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक साल में 10 महीने होते हैं, सो यू विल बी लाइक नो 12 महीने होते हैं, हमने तो हर जगह यही सुना है. बिकॉज ये आपकी प्रोग्रामिंग में है कि एक साल में 12 महीने होते हैं. आपने ये नहीं सीखा या आपके प्रोग्राम आपको ये प्रोग्राम नहीं किया गया कि 10वां महीना कि 13वां महीना कोई होता है, आप कहेंगे 12 महीने होते हैं. सो दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग किसी चीज़ में भी हो सकती है, हर चीज़ प्रोग्राम की गई है. एक चेयर प्रोग्राम की जाती है इन ऑर्डर टू सिट
फॉर अ पर्सन, राइट। फ्रूट को प्रोग्राम किया गया है इस तरह से कि वो इंसानों को या जानवरों को न्यूट्रिशन फराहम करे। दरवाजे को प्रोग्राम किया गया है इस तरह से कि वो एक रूम में, एक जगह में एंट्रेंस के लिए एक मीडियम बने। समझ आ रही है बात? आइस को, बर्फ को प्रोग्राम किया गया है कि वो ठंडी रहे, कोई बर्फ गर्म नहीं होती, राइट। सो ये चीज़ें सारी प्रोग्राम की जाती हैं। और अब जब हम आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट, जो कि आप लोगों ने भी अभी कुछ कहा इन्हीं ढके छुपे लफ्ज़ों में, वो ये कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज़ टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू, टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू डू इट, making the computer understand what to do, making the computer understand the communication from human perception towards the computer language is actually programming। कि ह्यूमन क्या परसीव कर रहे हैं, ह्यूमन क्या करना चाह रहा है एक्चुअली, और वो कंप्यूटर को कैसे समझाएगा कि वो कैसे करना है, दैट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर्स की अब मैं बात कर रहा हूँ। So this is the basic thing that you will have to understand. कि what does it mean by programming? Programming is telling the computer what to do. Now what does it mean by programming languages? Now what is a language, for example? Just understand the concept of language. आप मेरी क्लास में आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से चीज़ें पढ़ाऊँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को इतना हाई लेवल ना समझें जितना हाई लेवल वो नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुन के ही आपको लगता होगा कोड्स हैं और पता नहीं क्या चीज़ें, राइट। बट इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज। नो, व्हाट इज अ लैंग्वेज? फॉर एग्जांपल आपको उर्दू आती है, मुझे उर्दू नहीं आती, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? एनी एग्जांपल? इफ यू वांट टू, फॉर एग्जांपल, टेल मी टू पिक दिस ग्लास फ्रॉम द टेबल एंड प्लेस इट ऑन द चेयर, आई डोंट नो योर लैंग्वेज, यू डोंट नो माई लैंग्वेज, व्हाट विल यू डू? Any idea, any guesses? Okay, good. Farida is saying that you will try to make them understand using hand gestures. हाथों के इशारे वगैरह करके वो समझाएंगे कि भाई ये काम करना है, ये चीज़ उठानी है और यहाँ रखनी है। Any other idea? I think this will be the actual idea of every student कि देख कर और हाथों के जेस्चर से या वो काम करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के आपको समझाया जा सकता है कि वो चीज़ क्या है। Now what are you actually doing? You are actually communicating with that person, and that is what programming languages do. They create a medium, they create a medium in which humans can communicate with the computer. Now how will I tell the computer that if I press the keyboard button of D you have to write D? I will have to program it to do that. कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं कि मैं की डी प्रेस करूं और लिखे वो कुछ और होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। सो जो लैंग्वेज मैंने अभी बताई कि हम किस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन सीखेंगे अपने कंप्यूटर से, दैट विल बी द सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना सीखना चाहेंगे अपने कंप्यूटर्स के साथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ कोडिंग। What does it mean by coding? Now coding is something that is वही चीज़ जो कि अभी मैंने आपको कही कि प्रोग्राम करना है अगर आपने किसी चीज़ को, तो you will have to use a certain type of language. The grammar of that language is called coding. ठीक है, तो grammar will be called coding at this level. आगे चल के grammar को और भी हम elaborate करेंगे और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उसमें बताएंगे कि what is actually the grammar, right? So this will be the basic idea of this course कि आपने इसमें प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सीखने हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे, प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे, और लैंग्वेजेस की कोडिंग क्या होती है, उनका सिंटेक्स क्या होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। आई थिंक आई जस्ट अपलोडेड द
ppt file here. Let's see. I hope I have uploaded that. Okay, there are no lectures. Oh, sorry. So let me just open it from my computer. Okay, this is a different file. Okay. All right, let's continue. So, okay, we were talking about lectures. मेरे पास PPT slides नहीं है, इसलिए I am not showing you those things, but I have my lecture notes here, so I will just communicate with them and tell you those. Okay, so number one thing, if I am trying to tell computer what to do, for example, I am saying computer to write something on the screen. Write something on the screen means that I want the computer to write, say, E on the screen. नजर आ रहा है आप सबको? Font I think बड़ा कर दूं. Right. So let's say I am saying the computer के E लिख दिया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कीबोर्ड से E प्रेस करता हूँ और ये E लिख दिया जाता है. इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि K प्रेस करो, K लिखा जाए, तो मैं K प्रेस करता हूँ और कंप्यूटर K लिख देता है. नाउ दिस इज द सॉफ्टवेयर नोन एज नोटपैड. और नोटपैड में ये प्रोग्रामिंग की गई है कि कीबोर्ड से जो की प्रेस की जाए उसके एवज, उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक नोटपैड के ऊपर क्या लिखना है. दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस सॉफ्टवेयर. इसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि मैं के प्रेस करूं तो के लिखे, ई प्रेस करूं तो ई लिखे. इसको ये प्रोग्राम नहीं किया गया कि मैं अगर कंट्रोल ई करता हूं तो इस के ने फॉर एग्जांपल छोटा हो जाना है. राइट इसको ये प्रोग्राम नहीं किया गया कि अगर मैं कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट प्रेस करता हूं तो ये छोटा हो जाए. लेकिन अगर आप एक दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे प्रोग्राम में चले जाएं, दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाएं, विच इज़ वर्ड, अगर आप वर्ड पर चले जाएं और यही काम आप वर्ड पे करें तो कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट, अगर आप ओपनिंग करली ब्रैकेट अगर आप दबाएंगे तो वो छोटा होना शुरू हो जाएगा. नाउ दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द की प्रेसिंग, of control, of alt or shift or whatever, and the word program has a different meaning of the words, of the keys, of their pressing, of their combination as well. Right, so it depends on what kind of program you are using in order to say कि इस प्रोग्राम के पीछे इस चीज़ को क्या करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, क्या चीज़ करने के लिए प्रोग्राम किया गया है. जिस तरह से अभी मैंने इंसानों की एग्जांपल ली कि कुछ राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो उनको प्रोग्राम उस तरह से किया गया है, उनको प्रोग्राम उस तरह से किया गया है. वो प्रोग्राम किसने किया है? इंसानों को प्रोग्राम से गॉड ने किया है. इंसानों को प्रोग्राम उनके एक्सपीरियंस से प्रोग्राम हो जाता है. उन्होंने सारी ज़िंदगी राइट हैंड साइड से ही काम स्टार्ट किया तो वो राइट हैंड से ही कर रहे हैं. आदत बन जाती है, फितरत बन जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली द प्रोग्रामिंग. अच्छा, अब आते हैं इस कोर्स की एक्चुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर. दैट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच प्रोग्रामिंग से. स्क्रैच इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू वेब, जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो मैं आपको इसका एक छोटा सा वेब वर्जन दिखा देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई कि आप लोग ये चीज़ें खुद भी करें. सो स्क्रैच ऑनलाइन, लेट्स सी व्हाट वी गेट. ठीक है, दिस इज स्क्रैच ऑनलाइन. स्क्रैच इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ MIT. अभी अपडेट होता जा रहा है ये सॉफ्टवेयर. वी विल मूव ऑन टू द सी लैंग्वेज, बट अभी फिलहाल हम जो है वो एक विजुअल प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, एक विजुअल तरीके से हमें, ताकि नज़र आए चीज़ें. उसके बाद फिर हम एक्चुअल कोडिंग की तरफ जाएंगे. सो इट इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप कि हमने एक्चुअली काम क्या करना है, प्रोग्रामिंग होती किस तरीके से.
Let's wait for it to load. Right. ओके, चलें अब ये देखें, यहाँ पर एक बटन दिया गया है फ्लैग का, और ये एक स्टॉप का बटन है, रेड बटन है, स्टॉप का हो या किसी भी कोई भी इसको आप नाम दे लें। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रखी हुई हैं। ये देखें, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, सॉरी, जिनको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं पहले इसको उठाता हूँ, व्हेन दिस क्लिक्ड, व्हाट इज दिस, आई थिंक मैं थोड़ा जूम कर लूँ, या व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्लैग पर क्लिक किया जाए, तो मैं फ्लैग पर क्लिक करता हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज मैंने अभी तक प्रोग्राम को ये नहीं बताया कि व्हाट इट नीड्स टू डू इफ द फ्लैग इज क्लिक्ड। अभी मैंने इसको सिर्फ ये बताया कि जब फ्लैग क्लिक किया जाए, तो अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जब 6 बज जाएं, आगे मैंने कोई बात नहीं की, तो जब 6 बज जाएं तो क्या बताएं ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, तो मैं क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे काम है, समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी है, देखिए इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई भी है। यू विल, आप जब इसको जाकर यूज़ करेंगे तो यू विल सी कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी इंटरेक्टिव। सो लेट्स से प्ले साउंड नहीं, राइट, कहीं राइट नज़र आ रहा है आप लोगों को, नहीं है, चलिए टर्न कर लेते हैं। ये देखें टर्न, अब देखें दीज आर लाइक पजल पीसेस, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ इसका एज निकला हुआ है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर उस एज की जगह है, विच मीन्स कि इस पजल पीस को मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। नाउ दीज आर अटैच्ड, ओके। अभी देखें व्हेन दिस क्लिक्ड, टर्न 15 डिग्रीज, आई एम नॉट श्योर कि ये हो भी रहा है कनेक्ट या नहीं। अब आप देखें ये जो कैट एक बनी हुई है, जब भी मैं इस फ्लैग पर क्लिक करता हूँ तो ये 15 डिग्रीज मूव हो जाती है, राइट। जब इस पर गौर कीजिएगा, राइट, यू आर सीइंग कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 15 डिग्रीज मूव हो रही है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ 15 के बजाय, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट चेंजिंग, ओके लेट्स जस्ट डील विद 15। मैं इसके भी सॉल्यूशंस आपको बताता हूँ कि क्या है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, देयर इज नो लिमिट ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, राइट। सो व्हेन दिस क्लिक टर्न दिस 15 डिग्रीज, आपने ये कह दिया। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, यहाँ देखें इसके स्पेस लिखा हुआ है, जब स्पेस की प्रेस की जाए तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आई से मूव 10 स्टेप्स, जब मैं स्पेस की प्रेस करूँ तो मूव 10 स्टेप्स। अभी देखें मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, आप ऑब्वियसली देख नहीं सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देख, कैट के ऊपर ज़रा ध्यान दें, और आई विल प्रेस माई स्पेस की इन 3 2 1, सॉरी इट डिडंट मूव, ये 3 2 1 मूव हो रही है, 3 2 1, ये 10 स्टेप्स मूव हो रही है। सो ये जो मूव हो रहे हैं, ये आपने दो चीज़ें यहाँ पर लगा दी तो इसकी वजह से ये मूव हो रहा है। सो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, यहाँ पर आपको बहुत कम नज़र आ रही हैं, बट एक्चुअली जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर या कहीं पर आप इसको डाउनलोड अगर ऑप्शन हो, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर मी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट, बट आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, जाकर इंस्टॉल कीजिएगा ऑफलाइन एडिटर, इसके ऊपर आप काम करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। द पॉइंट इज़ कि जब आप स्क्रैच के ऊपर काम करेंगे तो यू विल नो, आई थिंक मैं इसको डाउनलोड पे लगा दूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम अगर बचे तो हम इस पर काम कर लें।
ओके इट्स डाउनलोडिंग, लेट्स वेट फॉर दैट, जब तक हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं. ओके सो व्हाट डिड आई टेल यू, आई टोल्ड यू कि स्क्रैच के ऊपर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो इट विल बी लाइक कि यू आर टेलिंग द कंप्यूटर विच इन दिस केस विल बी दिस एवाटार, this cat, this will be the computer for you here. Okay, wait, this is the computer, you are saying this computer that when we click this, turn 15 degrees. So when we are clicking this, it is moving 15 degrees. We are saying that when space key pressed, move 10 steps. So जब मैं space key को press कर रहा हूँ तो it is moving 10 steps. So this is what we will be doing throughout this course, not just this type of programming where it is just visual. We will move on to the coding thing as well, कि हम कोड कर रहे हैं कोई चीज़ और उसको लिख कर हम देख रहे हैं कि एक्चुअली ये काम हो किस तरह से रहा है. But before that, another important topic that we need to discuss is the topic of algorithms. What does it mean by algorithms? Can anyone tell me what do you mean by algorithms? अभी तक आपकी information में क्या है? What does it mean by algorithms? ALGORITHMS, algorithms. What does it mean by algorithms? Yes. What do you mean by algorithms? Sayyid Talha Ali. Daniel Ahmad, what do you think algorithm means? ओके दानियाल अहमद का जवाब है कि कैलकुलेशन के लिए जो रूल फॉलो किए जाएं दोज आर कॉल्ड algorithms. Set of instructions, Mujib Sheikh is saying. Sayyida Farida is saying step by step explanation to tell someone what to do step by step, like drinking a water or whatever, something like that. Okay. Okay, it's installing. Right. Daniel Ahmed is saying calculation के लिए. Mujib Sheikh is saying to design any task or program. This is called algorithm. Okay, you are right. Algorithms are actually the set of instructions that you use or implement in order to tell the other person or the other entity, whether that be a person or that be a computer, that what will you do, how will you do it, what will be the steps involved for you to do it. आप एक काम कैसे करेंगे और कितनी दफ़ा करेंगे और क्या क्या काम आपने बार बार करने हैं और क्या क्या काम कंडीशनल हैं, कैसे एक काम को आप लेकर चलेंगे. दैट विल बी द होल आइडिया बिहाइंड के व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हैपन व्हेन आई से कि ये काम आपने करना है. लाइक चाय बनानी है. व्हाट डू यू थिंक बाय इट मीन्स कि चाय बनानी है. तो जब भी कोई इंसान चाय बनाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसने चाय बनाई, तो उसका मतलब उसके लिए उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसको एक उसको एक केटल वगैरह चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको मिल्क चाहिए, उसको ऑप्शनल चीनी चाहिए, उसको पत्ती चाहिए. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी उस एक काम को करने में जिसको आप कह रहे हैं कि चाय बनाना है. राइट. तो चाय बनाने का एक एल्गोरिदम होता है. कैन यू टेल मी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम ऑफ मेकिंग अ टी. रेसिपी बताएं मुझे चाय कैसे बनती है. सारे स्टूडेंट्स मुझे रेसिपी भेजें ज़रा. हाउ डू यू मेक अ टी, हाउ डू यू मेक अ कप ऑफ टी.
ओके, राइट इट इन जस्ट वन मैसेज, ओके, एक एक करके मैसेज ना भेजें मुझे, अ, पूरा लिख लें पहले कि किस तरह से बनाई जाती है, फिर वो मुझे मैसेज भेजें। मेरे पास मिक्सअप हो रहे हैं सबके एल्गोरिदम्स। ओके, चलें जी। So people are saying collect 1 cup of water, collect 1 spoon tea. Then they are saying that water को boil करना पड़ता है, फिर उसमें टी साइड्स मिल्क और चीनी, और उसके बाद उसको हीट करना पड़ता है, जिसके बाद से चाय बनती है। गुड। बॉयल वाटर, मिल्क, शुगर। ओके, फर्स्ट वी बॉयल वाटर, देन ऐड टी पाउडर, शुगर एंड देन मिल्क। अच्छा, जितने भी मैंने कहे आपके सामने कि इस तरीके से बन सकते हैं, इन सबसे चाय बन जाती है। आ, किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है, कोई पानी को पहले बॉईल कर लेता है, उसके बाद उसमें चीज़ें इनपुट करता है। कोई इस तरह से करता है कि उसने सारी चीज़ें पहले से डाल दी हैं और उसके बाद फिर एक ही दफ़ा वो बॉईल करने के लिए डालेगा। ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट एंड में एक ही बनेगा, राइट। लेकिन उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी में फ़र्क होगा। बहुत एडवांस चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हर एक चीज़ के लिए एक अलग कोर्स है आपकी इस डिग्री में। वो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, चाय बन जाएगी, लेकिन एक चाय की एफिशिएंसी मुख्तलिफ होगी, एक चाय की एफिशिएंसी मुख्तलिफ होगी। एक चाय में शायद टेस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी ना हो। एक चाय में शायद टेस्ट उतना अच्छा ना आ रहा हो, लेकिन वो आपको जगाए रखे सारी रात, राइट, उसके अंदर कैफीन हो जाए ज़्यादा। एक चाय हो सकता है कि गर्म ना हो, लेकिन वो आपको फ़ायदा दे दे। एक चाय हो सकता है कि बहुत गर्म हो, लेकिन उसके अंदर टेस्ट ना हो। अलग अलग तरीक़ों से जितनी भी चाय बनेंगी, वो सारी की सारी उनकी एफिशिएंसी अलग होगी। रिमेंबर, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, प्रोडक्ट चाय ही कहलाएगी, लेकिन उसकी अफेक्टिवनेस चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डिड फर्स्ट, हाउ डिड यू डू इट, और ये आपने क्या किया। और इसी तरह जिस तरह से आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे बताई हैं, दोज आर कॉल्ड अल्गोरिदम्स। अभी सईदा फरीदा ने भी मुझे एक भेजा कि कलेक्ट 1 स्पून, कलेक्ट हाफ कप मिल्क, देन पुट वाटर एंड टी इन द शुगर पॉट, देन पुट द पॉट ओवर स्टव। अब इन्होंने देखें पहले पॉट ओवर स्टव रख दिया, उसके बाद जाके जब बॉयल हो गया है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐड मिल्क अंटिल द टी इज बॉइल्ड, देन रिमूव फ्रॉम द स्टव एंड सर्व। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने एल्गोरिदम भेज दिया, आप सबने एल्गोरिदम भेजा, बट दैट एल्गोरिदम डिफरेंशिएट्स पीपल टू पीपल, डिफरेंट आएगा। जिस तरह अभी 8-9 बंदों ने मुझे भेजा, सबके अलग थे एल्गोरिदम, शायद एक आधे का सेम हो, लेकिन तकरीबन का अलग था। तो द प्रोडक्ट इज सेम, बट द एफिशिएंसी विल बी depending on how did you do the work, which means that algorithms can define how effective and efficient and how reliable your software is going to be. ठीक है। So coming back to the Scratch thing, I just installed this offline editor of Scratch. Now this is the CAD. अब options थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे मेरे पास, and it will be very feasible for us to understand. सो स्क्रैच पे काम किस तरह से किया जाएगा, आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग वगैरह तो मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे डाउनलोड होगा, बस डाउनलोड करें एक्जी फाइल और उसको इंस्टॉल करें, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने की। ओके, सो वहीं से काम स्टार्ट करते हैं। से व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, देखिए मैं ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पर ले आया। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग एरिया, आप यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। दिस इज़ योर कंप्यूटर एंड यू इज़ यू, ऑब्वियसली। आपने इस इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है,
जिसके थ्रू आप बताएंगे इस एवेटार को, इस कैट को, इस स्प्राइट को कि इसने क्या करना है। तो आई एम सेइंग कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो से टर्न 15 डिग्रीज। नाउ हेयर इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड, अगर आपको नज़र आ जाए, सी ये देखें पजल पीस खुद जाके इसके साथ अटैच हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो एडिट दिस 15 की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 डिग्रीज। अब जब भी मैं इस फ्लैग पे क्लिक करूंगा तो इस कैट ने टर्न हो जाना है 15 डिग्रीज, 50 डिग्रीज सॉरी, another 50 degrees, another 50 degrees. I can do that and the cat will keep spinning, right? So ये कोड हो गया जो मैंने लिखा और जिसको मैंने अप्लाई किया और इस कैट के साथ मैंने वो काम कर दिया। समझ आ गई बात? तो ये आपने इस कैट को प्रोग्राम कर दिया in order to do these things। अब ये देखें कि इन चीज़ों में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दीज आर द फोल्डर्स जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2। अभी तक जो मैंने कोड लिखा है इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस है, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 इंस्ट्रक्शंस। कि आपने पहले ये देखना है कि क्लिक किस पे हो रहा है और आपने फिर काम क्या करना है। ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं अभी तक मेरे पास। मोशन के फोल्डर के अंदर, ब्लू फोल्डर के अंदर ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं। ऑपरेटर्स के फोल्डर के अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। पेन के फोल्डर के अंदर ये सारी पड़ी हुई हैं। कंट्रोल के फोल्डर के अंदर ये सारी पड़ी हुई हैं। अभी हम एक एक करके इन सबको डिस्कस भी करेंगे, नॉट अभी बट इस कोर्स के अंदर। बट अभी फ़िलहाल एक फ्री फॉर्म के अंदर हम एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और मैं बनाता हूँ और आप खुद अब उनसे सीखें। मैं अब आपके सामने एक कोड लिखता हूँ एंड उनमें से आप चीज़ें नोट करते जाएंगे एक्चुअली क्या क्या नई चीज़ आपको सीखने को मिली, ये क्या क्या नई चीज़ ऐसी है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो चीज़ें क्या थी जो आपने सीखी। सो आई एम जस्ट फ्री फॉर्मिंग एन एल्गोरिदम हियर।
यस, समझ आई बात क्या किया मैंने इस कोड में? दैट इज अ कोड बिकॉज दिस रिक्वायर्स some types of grammar that I am going to follow in order to tell the cat what to do. That is a code. I have programmed the cat to do these things via using a code. Okay. So what did I do? Let me just explain it. And तब तक आप अपने पास नोट कर लें और लिख लें ये चीज़ें कि इनमें नई चीज़ आपने क्या सीखी, कोई एक टॉपिक, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़. सो आई जस्ट सेड टू द कैट कि जब क्लिक किया जाए फ्लैग के ऊपर, आस्क टेल मी अ नंबर एंड वेट, एक्स की वैल्यू सेट कर दी जाए. क्या सेट की जाए? 0 रखा जाए, 1 रखा जाए? तो क्या रखा जाए? जो आंसर यूजर ने बताया वो रखा जाए. और फिर कहा जाए ये चीज़ 2 सेकंड तक. क्या चीज़? जो वैल्यू आई थी, जो एक्स की वैल्यू है, +3. तो अगर मैं 8 देता हूँ तो 11 बोलेगा, अगर मैं 20 देता हूँ तो 23 बोलेगा, अगर मैं 49 देता हूँ तो 51 बोलेगा, 52, 49 + 3. सो ये मैंने कोड किया है. नाउ टेल मी what else should I explain here, or what else did you learn here? All right, there is a question. I will address to that. Anyone else? Mujib Sheikh, what do you think? सब समझ आ गया? ओके, एक नेक्स्ट चीज़ पे जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं मैं कि अटेंडेंस जो होगी क्लास की, वो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स के अंदर हम इसी तरह लेंगे जब तक कि एलएमएस अपडेट नहीं हो जाता और आपकी इनरोलमेंट नहीं हो जाती. तो जो जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल करेंगे. सीआर जो भी हैं आपके, सीआर हैं कोई अनाउंस हुए कि हु विल बी द क्लास रिप्रेजेंटेटिव? हैव यू गाइस डिसाइडेड? Okay, Miss Farida will be the CR. Is that okay? Okay. So Farida, it will be your responsibility for this class, just this one responsibility, that you will have to take a screenshot of the participants and email me that to zubair@smiu.edu.pk. ठीक है? तो ये आप क्लास के दौरान किसी भी वक्त कर दीजिएगा. पूरी क्लास हमारी 1.5 घंटे की है, तो आके 10-15 मिनट बाद आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा ताकि उसके बाद आप भी सुकून से क्लास ले सकें और हम भी जो है वो सब स्टूडेंट्स आ चुके हैं. ओके, सो ऑल राइट, सो द क्वेश्चन वाज will it accept number or letter as well, like if I add a to x? Okay, so first of all understand this will be the whole structure of your semester in this course actually. कि देर आर मल्टीपल थिंग्स. अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, आप देखें डाटा के फोल्डर में मैं अगर आया हूँ तो देर आर 5 to 6 इंस्ट्रक्शंस. साउंड के फोल्डर में आता हूँ तो देर आर टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हियर. ऑपरेटर्स के अंदर देर आर 15 और समथिंग इंस्ट्रक्शंस हियर. मोर ब्लॉक्स के अंदर आप और भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वी विल नॉट बी एबल टू deal with or learn each and every instruction by ourselves. I will just tell you, like I introduced you to Scratch, और इसमें एक आधा प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, और इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद जाकर उसको मेंटेन करेंगे, खुद जाकर उनके साथ खेलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ओके हम इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं. राइट, सो लाइक यू सेड,
Farida, ke would you accept only the numbers? So the number, it can be anything. It can be a number, it can be a letter, it can be a sentence, it can be a special character like dollar sign or asterisk or whatever. It will be an answer. So यहाँ पर हुआ ये है कि अभी आपने देखा होगा जब मैं ये कोड कर रहा था तो I mistakenly added this block here. Now see, this is a purple block. और मैंने यहाँ पर भी ये लिखा था tell me a number. But it was not doing the trick. जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ it says tell me a number but it does not give me a medium to input something. इनपुट क्या करूँ मैं, कहाँ कैसे इसको नंबर बताऊँ? तो फिर मुझे ये क्लिक किया कि ओके आई एम यूजिंग द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हेयर. आई डोंट वांट इट टू से टेल मी अ नंबर, आई वांट इट टू आस्क टेल मी अ नंबर. आई वांट इट टू आस्क एंड वेट, नॉट जस्ट से इट फॉर 2 सेकेंड एंड देन गेट इट डन विथ. आई वांट इट कि ये मुझे कहे, बल्कि आस्क करे कि टेल मी अ नंबर. नाउ सी के दोनों ने काम एक ही किया है, आस्क ने और से ने. क्या किया कि एक बलून आया और उसने कहा कि टेल मी अ नंबर. बट आस्क में फ़ायदा ये हो गया कि नाउ आई हैव अ हाईलाइटेड मीडियम टू राइट द नंबर एज वेल. और मैं ये लिखकर इसको जब भेजूंगा तो ये 5 + 3 को कहेगा 8. राइट. सो नाउ दीज आर द ब्लॉक्स. अब इन ब्लॉक्स को हम समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक्स क्या हैं. नंबर 1 इज मोशन. इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कैट मूव कैसे करेगी. Move 10 steps, turn 15 degrees, point in a direction, point towards something, go to this is x location, this is y location. इसकी लोकेशन है एक्चुअली. अभी ये देखें आप, तो अभी कैट इस पूरे एरिया में जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ पर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 19 है. ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र आ भी रहा होगा x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं. अगर मैं इसको मूव करता हूँ कहीं तो यू कैन सी, आप इसको देखिएगा कि x और y की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बिकॉज इस पॉइंट पर x की वैल्यू 9 और y की 19 है. अब मैं इसको मूव करता हूँ अगर, तो यू आर सीइंग x और y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, विच मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. इस जगह पर वही 9 और 19 है. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो अभी 410 हो गई, अभी 11:6 हो गई, अभी यहाँ चले गए तो ये 59 और 73 पर है. सो ये सारी वो चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कैट के मोशन से रिलेटेड है, मूव किस तरह से करेगी. ये वो सारी इंस्ट्रक्शन है जो कि कैट के लुक्स के साथ, कॉस्ट्यूम चेंज हो सकता है, शो करना है, कुछ हाइड करना है, कुछ थिंक करना है, कुछ से करना है. जिस तरह से अभी से हेलो मैंने किया था तो वो उसने से कर दिया, तो वो बेसिकली लुक्स के अंदर आया, बिकॉज मुझे कुछ आवाज़ तो नहीं आई ना. कलर्स आप इसके चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह साउंड में अगर हम आते हैं तो साउंड के अंदर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं. प्ले साउंड मियाओ, प्ले साउंड मियाओ अंटिल डन, स्टॉप ऑल साउंड्स, प्ले ड्रम 1 for 25 seconds. बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी हैं. पेन, पेन में क्लियर कर दिया, स्टैम्प, पेन डाउन, पेन अप, सेंट पेन कलर. कुछ लिखना है अगर आपने तो आप वो भी कर सकते हैं. डाटा के अंदर इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी, मैंने एक मेक अ वेरिएबल किया और उसको x का नाम दिया, तो ये 4 चीज़ें आ गई मेरे पास. इससे पहले डाटा में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था. अगर मैं चाहूँ तो इस राइट क्लिक करके इस वेरिएबल को डिलीट कर सकता हूँ. इस वेरिएबल को मैंने डिलीट कर दिया. अब ये चीज़ें किसी काम की नहीं है. डाटा में आप देखें आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है. अगर आप चाहें तो एक वेरिएबल बना सकते हैं. वेरिएबल क्यों बनाते हैं हम, कोई बता सकता है वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? गुड. फरीदा इज सेइंग टू होल्ड डाटा. डाटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा ही था. मैं ये चाह रहा था कि जो यूज़र वैल्यू देगा उससे 3 ऐड करके मैंने प्रिंट करवाना है. तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो 3 और क्या वैल्यू आई है. वो जो क्या वैल्यू है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया. उस वेरिएबल के अंदर मैं डाटा को स्टोर करता हूँ और उसके साथ फिर ऑपरेशंस करता हूँ. ठीक है, वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर, इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा. सो डाटा के अंदर आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी एडवांस टॉपिक. आप चाहें तो इसके साथ खेलें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा लिस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं. देन कमिंग ऑन टू इवेंट्स. इवेंट्स का मतलब ये है कि एवरीथिंग दैट इज़ स्टार्टिंग विद व्हेन.
जिस तरह यहाँ पर मैंने काम किस इवेंट से करवाया है स्टार्ट, कि भाई ये सारा काम होगा तो सही, लेकिन कौन सा इवेंट है जो कि इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा। अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें कब हों? क्या ये हमेशा होती रहें? क्या ये सिर्फ एक दफ़ा हो? क्या ये 4 बजे हो? क्या ये 6 बजे हो? क्या ये किस इवेंट के होने पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करें कि वो मुझसे नंबर मांगे, मैं उसको नंबर दूं और वो उसमें 3 ऐड करें? कब होना चाहिए ये? वो इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब इस पर क्लिक किया जाए, जब कोई की प्रेस की जाए, जब स्प्राइट पे क्लिक किया जाए, जब बैकड्रॉप स्विच किया जाए, जब लाउडनेस बढ़ाई जाए, क्या किया जाए जब ये काम किया जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वैन दिस क्लिक नहीं, वैन स्पेस की इज प्रेस्ड। अब स्पेस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, स्पेस के बजाय मैं एनी की भी कर सकता हूँ, लेफ्ट एरो भी कर सकता हूँ, के भी कर सकता हूँ। वैन के इज प्रेस्ड, अब जब मैं के को प्रेस करूँगा तो इट विल से, सॉरी फिलहाल इसको मैं रन कर ले स्टॉप कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। स्टॉप का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल बीच में था एक इंस्ट्रक्शन के, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अभी जो चेंजिंग हो गई है अब उसको रन किया जाए, तो मैंने पुरानी को स्टॉप कर दिया, अब मैं नई स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए मैं फ्लैग पर क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज फ्लैग क्लिक के साथ कोई चीज़ एसोसिएटेड नहीं है। व्हाट इवेंट इज ट्रिगरिंग ऑल दीज थिंग्स, कि जब के की को प्रेस किया जाए, तो जब मैं के को प्रेस कर रहा हूँ तो यू कैन सी हियर कि अब ये चीज़ वही काम कर रही है जो कि पहले फ्लैग क्लिक पे काम कर रही थी। तो दीज आर सम इवेंट्स। फिर आते हैं कंट्रोल के ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि आगे चलकर आपको कोडिंग के अंदर यानी सी के कोडिंग के अंदर भी बहुत फ़ायदा देगा और बहुत जगह यूज़ होगा। और इसके अंदर हैं कंट्रोल्स। नंबर वन इज वेट 1 सेकेंड, यू कैन मेक द स्प्राइट वेट, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन पर आने से पहले मैं अगर इसको कहता हूँ कि वेट करें तो इसको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि लेट सपोज कि मैंने इसको कहा कि आस्क टेल मी अ नंबर एंड वेट, ठीक है, ये इस वेट को फिलहाल छोड़ दें। जब ये इंस्ट्रक्शन हो रही होगी तब यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, यानी कि जब मैं, अब देखें ये इस इंस्ट्रक्शन पे आ गया, टेल मी नंबर एंड वेट, इट इज़ वेटिंग। जब मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ या इस बटन को दबाता हूँ तो ये 6 आंसर में आ जाता है, आंसर से उठ के एक्स में आ जाता है। फिर उसके बाद उसमें 3 प्लस होता है और वो लिख के आया जाता है, प्रिंट होता है फॉर 2 सेकेंड्स। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे काम हो गए जल्दी से, कुछ पता नहीं लगा। हाउ अबाउट कि मैं ये कहूँ कि जब ये आंसर से एक्स में आ जाए तो उसका जवाब बोलने से पहले यू हैव टू वेट से 3 सेकेंड्स। अब ये आंसर को, आंसर से एक्स में चली जाएगी वैल्यू, लेकिन वो जवाब बोलने से पहले 3 सेकेंड वेट करेगा। लेट्स ट्राई हियर अगेन। 6, अभी मैं जैसे इसको एंटर कर रहा था 9 लिखा हुआ आ रहा था, बट अब देखिएगा 3 सेकेंड के बाद लिखा हुआ आएगा, क्योंकि कहने से पहले इसने 3 सेकेंड का वेट लगा दिया है। कंट्रोल आ गया है मेरे पास। 1 2 3, नाउ इट इज प्रिंटिंग 9, राइट। तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कंट्रोल के ब्लॉक्स हैं, रिपीट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि बजाय इसके कि वो वेट करे 3 सेकेंड का और फिर ये काम कहे, हाउ अबाउट कि ये कहता रहे 10 दफ़ा या चले 5 दफ़ा। व्हाट एम आई सेइंग कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर देखें इनकी शक्लें भी चेंज हैं। इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो। अब क्या चीज़ है जो कि 5 दफ़ा रिपीट होगी, वो ये ब्लॉक है, यानी कि वो x+3 को 5 दफ़ा रिपीट करेगा, यानी कि वो 9 या जो भी आपकी वैल्यू बनती है वो प्रिंट करेगा, 2 सेकेंड तक प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 2 सेकेंड तक, फिर उसके बाद 2 सेकेंड तक, इस तरह वो प्रिंट करता जाएगा। नाउ लुक हियर अगेन, लेट्स से आई प्रिंट 8 11 then again 11 then again 11 then again 11 then again and then again। बट हमें ये पता नहीं लगा कि कब इसने एक दफ़ा प्रिंट किया, कब इसने दूसरी दफ़ा प्रिंट किया, कब इसने तीसरी दफ़ा प्रिंट किया। हमने तो कहा कि ये 5 दफ़ा बोलेगा, 11 5 दफ़ा प्रिंट होगा, बट यहाँ पे कहाँ 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिंट हो रहा है। सी, एक दफ़ा प्रिंट हुआ है और ये भी गायब हो जाएगा। दूसरी दफ़ा कब आया, रिपीट कब हुआ ये? व्हाट डू यू थिंक, कब रिपीट हुआ है?
गुड। दानियाल अहमद सेइंग कि रिपीटेशन तो हो रही है बट इट इज़ नॉट विजिबल टू आवर आइज बिकॉज हमने वेट नहीं कराया। तो अगर हम वेट करवा देंगे ना इसको, यहाँ पे इस वेट को उठा के देखें, इस से के नीचे अगर मैं लगा देता हूँ, यानी रिपीट में वो से भी करे 2 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड का वेट भी करे, फिर उसके बाद 2 सेकंड तक आए, तो अब मुझे फ़र्क वाजे हो जाएगा कि पहले 2 सेकंड तक हुआ, उसके बाद नहीं हुआ 1 सेकंड तक, फिर 2 सेकंड तक हुआ। तो लेट्स ट्राई इट अगेन। 10, gone for 1 second, then again, second time, third time, fourth time, and fifth time, and gone. अब नहीं आएगा क्योंकि I just repeated it 5 times, not 6 times, not 7 times, right? So मुजीब शेख का भी ये जवाब है कि वेटिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से we did not know how to differentiate between the repetitions. Is that a question? सैयद अहमद रज़ा is saying repeat जब शो होगा उसके लिए भी कोई की यूज़ करेंगे। ऑल राइट, यू कैन डू दैट एज वेल। जिस तरह से मैंने यहाँ पे वेट करवाया है, आप यहाँ पर कोई की यूज़ करवा दें। आप कहें कि भाई जब एक दफ़ा ये की दबाऊँ तो उसके बाद रिपीट करे, वरना वो रिपीट ना करे। बट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपने लिखा है कि रिपीट 5 टाइम्स। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी कंडीशन। किसी कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करना। कंडीशन के ऊपर हम आते हैं अभी कुछ देर के अंदर कि व्हाट इज़ दैट। सो ये काम हमने कर लिया। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो ये रिपीट वाली बात हो गई, एक इफ़ एल्स वाली बात हो जाएगी, इफ़ देन। सो अब मैं रिपीट हटा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यू हैव टू से दिस फॉर 2 सेकेंड्स ऑब्वियसली। पहले ये डायरेक्ट हो रहा था, फिर हमने रिपीट कर दिया। अब हम एक और ब्लॉक उठाते हैं इफ़ देन का, और हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो ये कहे, वरना ऑब्वियसली ना कहे। अब ये चीज़ क्या होनी चाहिए? यहाँ पर ये जो डायमंड तरह की आपको शक्ल नज़र आ रही है, इस चीज़ को कहा जाता है कंडीशन। भाई ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आप कहें, वरना नहीं कहें। इस तरह से आज आपने क्लास ली, आप 3 बजे आए। कितने बजे आए? कितने बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुई है? 4 बजे। 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, तो हाउ डिड यू नो कि आपने 5 बजे नहीं आना? हाउ डिड यू नो कि आपने 3 बजे नहीं आना? बिकॉज दिस वॉज अ कंडीशन। कंडीशन वॉज कि 4 बजेंगे थर्सडे को तो आपकी पीएफ की क्लास होगी। अगर 4 नहीं बजते थर्सडे वाले, तो इसका मतलब आपकी पीएफ की क्लास नहीं होगी। समझ आ रही है बात? तो इसी तरह यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि भाई ये काम करना तो है कि से x प्लस 3 फॉर 2 सेकेंड, जो कि अभी तक हो रहा था। बट अब इस चीज़ को मैंने एक कंडीशन में डाल दिया है कि दिस थिंग विल हैपन बट ऑन वन कंडीशन। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? से द कंडीशन इज, अब देखिए कंडीशन का जो ब्लॉक है उसके डिज़ाइन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर से कौन सा ब्लॉक आएगा। 1 2 3 4 5, इन 6 में से कोई ब्लॉक आएगा, राइट? तो लेट्स सपोज कि मैं इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये काम किया जाए, वरना ये काम ना किया जाए। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, नाउ यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ इफ 1 इक्वल्स टू 1। अगर 1 1 के बराबर होगा तो ये प्रिंट हो जाए, वरना ना हो। तो आई थिंक दैट्स ओके। अगर 1 1 के बराबर होगा, क्या 1 1 के बराबर होता है? यस, 1 1 के बराबर होता है। बट व्हाट अबाउट कि अगर मैं यहाँ 1 के बजाय 2 लिख दूँ? अब वो प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों प्रिंट नहीं कर रहा? बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमने एक कंडीशन लगा दी। हमने ये कहा कि भाई अगर ये चीज़ हो तो आप ये काम करें, अगर ये चीज़ ना हो तो आप ये काम ना करें। इस कंडीशन को थोड़ा सा और बेहतर बना देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर से x की वैल्यू 6 है, अब यहाँ पर x लिखना है मुझे, तो मैं अगर सिर्फ x लिख दूंगा तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं डेटा में जाऊंगा और x को ड्रैग ड्रॉप करूंगा यहाँ पे। इफ़ x इक्वल टू 6 तो ये चीज़ प्रिंट करे, वरना नहीं। यानी कि अगर मेरे x की वैल्यू 6 होगी तो वो +3 करके प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। लेट्स ट्राई इट अगेन। 8 क्या 6 है या नहीं है? इसका मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा। बट अगेन अगर मैं यहाँ पर 6 वैल्यू दे देता हूँ तो इट इज़ नाउ प्रिंटिंग 9। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई
इफ देन की. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. इसमें एक और ब्लॉक भी है. सी ऊपर वाला ब्लॉक तकरीबन सेम है. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये आपने कहना है. अच्छा, इसको भी x इक्वल टू 6 के बजाय हम एक काम करते हैं, कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं. हम ये कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3. अगर 3 से बड़ी आएगी ना वैल्यू तब ये काम करे, वरना ना करे. जस्ट अ कंडीशन, कैन बी एनीथिंग. एक्चुअली जब इक्वल की कंडीशन आप लगा देते हैं ना तो आप बहुत लिमिटेड कर देते हैं. अब 6 होगा तो ही जवाब आएगा, वरना नहीं आएगा. लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से 4 पे भी जवाब आएगा, 6 पे भी आएगा, 7 पे भी आएगा, 98 पे भी आएगा. हर 3 से बड़ी वैल्यू पे जवाब आएगा. अच्छा, इसमें यह है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कहना है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब भी मैं कुछ इसको बता सकता हूँ कि क्या करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स हो जाती है, तो लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि से हेलो फॉर 2 सेकेंड. तो अगर मैं 3 से छोटा नंबर देता हूँ इसको तो ये हेलो कहेगा. अगर मैं 3 से बड़ा कोई नंबर देता हूँ तो ये उसमें 3 ऐड करके प्रिंट कर देगा. सो लेट्स ट्राई अगेन. क्या प्रिंट होगा? 7 में डाल रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा बताएं जल्दी से. सबके जवाब आने चाहिए मेरे पास. द कंडीशन इज ट्रू. जो है कंडीशन इज ट्रू. व्हाट विल बी द आंसर? माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आंसर. क्या प्रिंट होगा? आई एम आस्किंग कि क्या प्रिंट होगा अगर मैं यहाँ पर 7 एंटर करता हूँ तो. द कोड इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो यू गाइस आर सेइंग दैट 10 प्रिंट होगा. एक जवाब आया कि हेलो प्रिंट होगा. सो हेलो प्रिंट नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. नाउ लेट्स लर्न अनदर वर्ड दैट इज नोन एज ड्राई रन. ड्राई रन. बजाय इसके कि आप इसको रन करके देखें, चला कर देखें, वाई नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या होगा. सो लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट इट. क्या होगा? सबसे पहले वन बाय वन ड्राई रन किस तरह से किया जाता है? इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की तरह सोच के आप काम करेंगे. व्हेन के की प्रेस्ड, क्या के की प्रेस होगी जब, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. आस्क टेल मी अ नंबर एंड वेट. आस्क किसने कर लिया? टेल मी अ नंबर, और वेट किया. अभी मैंने 7 एंटर नहीं किया है, सिर्फ लिखा है. उसके बाद क्या होगा? जो आंसर दूंगा मैं, अभी हम ड्राई रन की तरफ जा रहे हैं. अभी हुआ नहीं है ये काम, लेकिन वी आर जस्ट थिंकिंग कि क्या होगा. आंसर जो होगा विच विल बी 7 इन आवर केस विल बी असाइंड टू x. x को सेट कर दिया जाएगा 7 के साथ, यानी कि x के अंदर 7 सेव हो जाएगा. अगला काम क्या होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 3 देन, अगर ये चीज है तो ये काम होगा, वरना ये काम होगा. अगर ये चीज है, ये चीज क्या है? x इज ग्रेटर देन 3. व्हाट वाज x? x वाज 7. क्या 7 ग्रेटर देन 3 है? अगर है तो ये काम होगा, अगर नहीं है तो ये काम होगा. सो क्या 7 ग्रेटर देन 3 है? यस, 7 इज ग्रेटर देन 3. इसका मतलब है ये काम होगा. x प्लस 3, x क्या है? 7 प्लस 3. 7 प्लस 3 कितना हो जाता है? 10. 2 सेकेंड्स तक क्या प्रिंट होगा? 10. सो आई एम जस्ट एंटरिंग दिस. 10 इज प्रिंटिंग. कैन यू टेल मी हेलो कब प्रिंट होगा? गिव मी एन इनपुट. मैं क्या लिखूं कि हेलो प्रिंट हो जाए? When value of x is less than 3. Good तानिया लेमन. जोएब इज सेइंग कि 2 एंटर कर दें. सही है, तलहा भी यही कह रहे हैं कि 2 एंटर कर दें. जब मैं 2 एंटर करूंगा तो हेलो आएगा, राइट?
ग्रिप कर लिया है ये चीज़। अब देखें इसकी टेक्निकलिटीज़। अभी फिलहाल हमें बात समझ में आ गई है, बिकॉज दिस इज़ प्रीटी मच लाइक आवर यूजुअल लैंग्वेज, उर्दू में हम इंग्लिश में जिस तरह से बात करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, ये दोनों चीज़ें कब प्रिंट होंगी? 10 भी प्रिंट हो जाए और 11 भी प्रिंट हो जाए। कम ऑन, you guys are thinking now. I just said कि right off the top of the head जल्दी से बताएं मुझे। 10 भी प्रिंट हमने करके देख लिया, एरो भी प्रिंट करके देख लिया, व्हाट अबाउट ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएं, कैसे प्रिंट होंगी? Daniel thinks when the value is 3 both of the things will print. Okay, Sayyid Talha is saying greater than 3, यानी कि मैं अगर 4 या 5 एंटर करता हूँ तो दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। और आर यू सेइंग दैट जस्ट 3? दैट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग आंसर। ज़ुहैब अली भट्टी भी यही कह रहे हैं कि 3 एंटर करेंगे तो हम दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। सो गुड, लेट्स ट्राई दैट। 3 एंटर, just hello. Yes, come on, give me your insights, give me your comments. It just printed hello, it didn't print say 6 first, just hello. What is 3? Can you tell me, just tell me this. I'm going to make it very simple for you. Just tell me this. जब मैं 3 एंटर करता हूँ, 3 एंटर किया मैंने, तो ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई 3 एंटर करने पे? Right, Talha Ali, false. Daniel is saying false. Yep. Talha Ali is saying 3 is equal to 3, which means, which implies, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 is not greater than 3. If something is equal to something, that means that that thing is not greater than that thing. You following me? Right? आपको समझ में सब बातें आ गई हैं, but the programming is, the gist of programming is this, that you will have to understand how you understand the things that you understand. Right? Like you say 2 plus 4 equal to 6. Like for example, इस कोड से हटके एक मिनट के लिए एक चीज़ समझते हैं. If I say 3 multiplied by 4 is 12. 3 multiplied by 4 is 12. What does this mean actually? Can you put it in some other way, in a simpler way? 3 multiplied by 4 is 12. In a simpler way for me to understand. For a child of say KG class to understand. What is 3 multiplied by 4 equal to 12? Why is 3 multiplied by 4 equal to 12? Come on, guys. Don't be like that. I know you know this. Why is 3 multiplied by 4 equals to 12? सैयद अहमद रजा is saying 3 को 4 टाइम पुट किया है इसलिए. Okay, okay. I know, I understand that. I'm just saying, can you tell me the basics of this?
एनीवन एल्स? I will keep waiting. I won't move forward until you give me an answer, right or wrong, or just admit that you don't have an answer. I just asked you a simple question. I said, if I tell you that 3 into 4 equals to 12, what does this actually mean? Let me rephrase it again. If I say that 3 multiplied by 4 equals to 12, why is it 12? What does multiply mean? Okay, now the good answer is here. Mujib Sheikh is saying that because we added 3 4 times. अगर आप 3 को 4 दफा ऐड करेंगे तो you will get 12. This is why we say that 3 into 4 equal to 12. So you know what basics are. Okay? यही काम हमने करना होता है प्रोग्रामिंग में. Because we don't say कि कंप्यूटर को सब पता है. We will have to understand कि ओके इसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज इसको ये नहीं पता था. जिस तरह 3 के केस में इसने हेलो क्यों कहा, क्योंकि 3 के केस में ये कंडीशन हो गई फॉल्स. क्यों हो गई ये कंडीशन फॉल्स? वाई 3 ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स? बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3. 3 is not greater than 3. This means it is just saying you that 3 is not greater than 3. It's not saying you that 3 is equal to 3. It's not saying that 3 is less than 3. So just stick to the things that you have said to the program. आपने उसको क्या कहा कि भाई अगर नंबर 3 से बड़ा है तो आपने उसको प्रिंट करना है, वरना हेलो प्रिंट करना है. तो आपने जो 3 दिया, क्या वो 3 से बड़ा था? सो आप अपनी मैथमेटिक्स में कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली 3 तो फिर बराबर है, उससे बड़ा तो 4 होता है. 3 क्या हुआ, छोटा हुआ या बड़ा हुआ? नो, छोटे का सवाल ही नहीं है, बराबर का सवाल ही नहीं है. सवाल ये है कि क्या 3 से बड़ा है या नहीं. अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो गई. दैट्स इट, सिंपल एज दैट. डोंट गेट इनटू योर ओन मैथमेटिकल concepts because this computer, this sprite, this code doesn't know your concepts. आपने इसको सिर्फ इतना बताया था कि 3 से बड़ा है नंबर तो प्रिंट करना है, वरना हेलो. तो आप बस ये समझे कि 3 से बड़ा है या नहीं. दिस इज द क्वेश्चन, नॉट के बराबर है या नहीं, नॉट के छोटा है या नहीं. क्या 3 से बड़ा है? नहीं है बड़ा. दैट्स इट, फॉल्स है कंडीशन. इसका मतलब है कि हेलो प्रिंट कर दिया जाए. नाउ माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. द क्वेश्चन इज सेम अगेन, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या वैल्यू इनपुट करूं कि दोनों चीजें प्रिंट हो जाएं, नंबर भी और हेलो भी. सैयद तलहा अली इज सेइंग दैट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर मैं डालूं तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे. ओके, फरीदा का जवाब सही है. आई एम नॉट सेइंग इट आउट लाउड राइट नाउ. बोलता हूँ मैं कुछ देर में कि क्यों है इसका जवाब सही. यस एग्जैक्टली, दोनों एक साथ वर्क कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते एक साथ वर्क? क्योंकि आपका एक ब्लॉक ये कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करना है,
और एक ब्लॉक ही, ये ब्लॉक ही कह रहा है कि अगर ट्रू है तो ये करना है, ये कह रहा है कि अगर फॉल्स है तो ये करना है. देयर इज नो इन बिटवीन सिचुएशन, देयर इज नो इन बिटवीन सिचुएशन. या तो आपका सवाल या जो भी आपकी कंडीशन है वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, दैट्स इट. कोई बीच की कंडीशन नहीं है, राइट right? यही सारा जो है क्या कहते हैं जिस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कि देयर इज नो सच थिंग एज इन बिटवीन. इधर इट इज जीरो और come on, complete my sentence. Either it is zero or it is one. Either it is true or it is false. Either it is black or it is white. That's it. There is no in between. So according to that scenario, the condition can be true or it can be false. It can neither be true or false at the same time, right? सो इस चीज़ के साथ जाकर आप लोग खेलेंगे. ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस नहीं किया, सेंसिंग को आप जाकर खुद ही इसको डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं. नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे. एंड आई विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास में अगर मैं यहाँ पर कोई कोड करता हूँ तो वो आपको 100% समझ में आ जाएगा, राइट. सो अपनी तरफ से जाकर मुख्तलिफ तरह के काम करें. इसके स्क्रैच के बने बनाए भी बहुत सारे कोड्स इस तरह के रखे हुए हैं ऑनलाइन, आप जाएंगे आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स. आप उनको देखेंगे, इन्हीं सारी कंडीशन को यूज़ करते हुए कितने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है. सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल कि आप ब्लॉक्स को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. बाकी इसके अलावा आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं. तो जाकर आपको इस पर काम करना है. नेक्स्ट क्लास में जब आएँ तो कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ हो, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह काम करता है, उसका क्या फ़ायदा होता है. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इंशाल्लाह. एंड आपको इस चीज़ की जो इसकी जो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी. आईटी वाले मुझे जैसे ही भेजेंगे तो आपको मिल जाएगी. आई थिंक मैंने आपको पहले भी भेज दी है पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग. ये इवनिंग की क्लासेस हैं. यस, ठीक है, मुझे फ़रीदा मिल गया है, थैंक यू. अगर आप शिफ्ट चेंज करवाना चाह रहे हैं तो काइंडली टॉक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन. उनको ईमेल करें, उनसे बात करें अगर आप शिफ्ट चेंज करवाना चाह रहे हैं, या फिर एचओडी से बात करें. सो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है. थैंक यू.